ایک جو سیاسی اس وقت بے یقینی کی کیفیت ہے اس سے نکلنا چاہیے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں مل کے ایک جو سیاسی افراتفری ہے اس سے نکلیں اور ملک میں ایک اسٹیبلٹی آنی چاہیے. اور جب تک یہ انسرٹینٹی ہوگی اور اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، کیونکہ اب ان کے 3 سال ہو گئے، اب 2 سال رہ گئے، تو اس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ پولیٹیکل سٹارمنگ میں شاید اور اضافہ ہوگا، کیونکہ آگے آنے والے الیکشن کے لیے لوگ اپنی ری پوزیشننگ کریں گے، تو اس کا بھی بہرحال برا اثر پڑے گا اکانومی کے اوپر. دوبارہ سے جو پرندے ہیں انہوں نے اپنی ڈائریکشن لینی ہے کہ آگے کس کی گورنمنٹ آئے گی، نمبرنگ سسٹم میں آگے کس کا نمبر ہے، لوگوں کی ری الائنمنٹ ہوگی. گندم سے لے کر چاول، چینی تک ایگریکلچرل ملک ہونے کے باوجود ان کا امپورٹ ہونا اور ویلیویبل ذرائع مبادلہ کا اس میں جانا، جس کی وجہ سے مہنگائی کا ہونا، دیز ور دا آل تھنگس جن کو انہوں نے ایز اے کرٹک ریس کیا. بٹ ریممبر ہی ہیپنس ٹو بی ون آف دا گریٹ ایڈمائررز آف دا پریزنٹ گورنمنٹ. اگر ہم بر وقت ان چیزوں کو مینیج کریں تو پرائم منسٹر کوشش تو بہت کر رہے ہیں، ماننا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے وہ ایفرٹس کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں ظاہر ہے کہ جو نیچے جن لوگوں نے چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے تو اس میں وہ لوگ بر وقت ان چیزوں کو اگر مینیج کریں تو ٹھیک ہوگا. پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے، اس میں کاٹن گروئنگ کے علاوہ جو ہماری ٹیکسٹائل پالیسی ہے وہ 3 سال سے اس میں ابنڈنٹ پڑی ہوئی ہے، اس کے لیے انتظار ہو رہا ہے، مگر ابھی تک وہ پالیسی بھی انلیش نہیں ہو سکی. جس میں انہوں نے کائنڈ آف شکوہ کیا کہ عمران خان صاحب محنت تو بہت کرتے ہیں مگر جو ان کی ٹیم ہے ایکچولی اس کو پرفارم کرنا ہے. یہ وہی والا کیس ہے کہ ایک آدمی ٹاپ پر اچھا سے اچھا بیٹھا ہوا ہو، لیکن اگر اس کے پاس ٹیم اچھی نہیں ہے، اچھے پرفارمر نہیں ہے. ایکچولی عمران خان's جاب از ٹو ہیو دا رائٹ پرسن آن دا رائٹ پلیس. ذمہ دار فخر امام ہے تو ان سے بات کرنی چاہیے، ان کو بہت سارے راستے دکھائے جا سکتے ہیں، دروازہ بھی ایک راستہ ہے. اگر فخر امام کو ایشوز نہیں ہیں اور فخر امام کی کمپٹنس پہ تو کوئی سوال کر ہی نہیں سکتا، بٹ گورننس کے ایشوز ہیں، ان کو بیوروکریسی سپورٹ نہیں کر رہی، ان کو سسٹم نہیں سپورٹ کر رہا. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کی ترقی کو یا پی ٹی آئی کو انفیکٹ جو آخری چانس ہے وہ اس کا چانس جو ہے وہ ضائع کرانا چاہتے ہیں. سو ظاہر صاحب اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر، یو نو دس سیگمنٹ آف دا اکانومی، سیکٹر آف دا اکانومی ویری ویل. ٹیکسٹائل سیکٹر میں لانگ اینڈ سسٹین ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی حکمت عملی گورنمنٹ کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ٹیکسٹائل سیکٹر میں یہ کب تک اکانومی اس طریقے سے چلے گی کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں جو ایکسپورٹ کے نمبرز ہیں وہ بہتر ہوں گے تو بیکاز کہ بنگلہ دیش میں مسائل ہو گئے تو آپ کو آرڈر مل گئے. کاٹن آپ کا را گڈ ہے، وہ آپ 6-7 ارب ڈالر کا امپورٹ کریں. جب آپ بجلی کی قیمت بڑھائیں گے تو یقیناً اس سے پھر انفلیشن بھی بڑھے گا، پھر غریب آدمی کے لیے مسائل ہوں گے، ایکسپورٹر کے لیے ایشوز ہوں گے، انڈسٹری کے لیے ایشوز ہوں گے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے گی. تو یہ ایک ایسا وشے سرکل ہے کہ آپ اس سے نکل نہیں سکتے جب تک آپ ایک کی ٹوپی دوسرے کے سر، دوسرے کی تیسرے کے سر، آپ یہ سلسلہ جب تک کرتے رہیں گے تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو شعبہ جتنا کام کر رہا ہے، جس طرح کا کام کر رہا ہے، اس کو دیکھا جائے اور وہیں اس کی اصلاحات کی جائیں، وہیں اس کو ٹھیک کیا جائے. اور اس کی بجلی کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو بھی دوسرے ممالک میں ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیا ہے، الیکٹریسٹی کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے، تو وہ کاسٹ آف پروڈکشن جو دوسرے ممالک میں آ رہی ہے وہی ہماری بھی آنی چاہیے، کیونکہ فیول وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں، فیول ہم بھی امپورٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا کاسٹ آف پروڈکشن جو الیکٹریسٹی کی ہے اس کو بھی دوسرے ممالک کے ساتھ کمپٹیٹیو ہمیں رکھنا چاہیے، اور اس میں اگر ہماری کاسٹ زیادہ آ رہی ہے تو اس چیز کو بھی ہمیں ہینڈل کرنا چاہیے. تو ہمیں خبر ہونی چاہیے کہ ہم انڈیا سے کمپیریزن کے لیے صرف انڈیا کے دفاعی ساز و سامان، جہازوں اور لڑائی کے ساز و سامان کو دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انڈیا کی معیشت اچھی پرفارم کیوں کر رہی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بنگلہ دیش میں جو الیکٹریسٹی کے چارجز ہیں انڈسٹریلسٹ کے لیے وہ کس طرح کے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ چائنا ساری دنیا میں اس ریجن میں جہاں جہاں پانی ہے، چائنا وہاں پہ پاور جنریشن کے سسٹمز لگا رہا ہے. ہم پانی سمندر میں پھینکنا پریفر کرتے ہیں بیکاز ہمیں انڈسٹری کو شاید سستا نہیں کرنا، ہمیں عوام کو شاید سستی چیزیں فراہم کرنا ہماری پرائرٹی نہیں ہے، ہماری لسٹ میں نہیں ہے. سو انڈرسٹوڈ. سو اے پرسن لائک فخر امام بینگ ایٹ دا ہیلم اینڈ ڈسپائٹ دیٹ یہ سچویشن ہو کہ آج ٹیکسٹائل سیکٹر کو چیلنجز کا سامنا ہے. آپ کے خیال میں آپ کا اس پہ کیا ویو ہے؟
देखें, फ़खर इमाम साहब इंतहाई काबिल और पढ़े लिखे इंसान हैं और वो अपनी फील्ड जो उनके पास जो वजारत है वो उसमें बड़े माहिर भी हैं, कॉम्पिटेंट हैं। हमारी उनके साथ बातचीत होती रहती है। अभी एक सेमिनार भी हमारा और उनका मुश्तरका तौर पे हुआ था कॉटन ग्रोइंग के ऊपर, और उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। तो वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन समझने के बावजूद फिर अगर उन चीज़ों को हल नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो कॉटन ग्रोइंग के लिए रकबा नहीं प्रॉपर कर पा रहे हैं, उसके लिए वो अगर बीज नहीं दे पा रहे हैं, पेस्टिसाइड नहीं दे पा रहे हैं, और इस तरह के बहुत सारे जो इसमें मसाइल हैं, अगर उनको प्रॉपर वो हल नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे काबिल आदमी तो शायद हमें इस मिनिस्ट्री के लिए नहीं मिलेगा। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि प्राइम मिनिस्टर भी इन चीज़ों को देखें। अगर गवर्नमेंट को सस्टेन्ड बुनियादों पर महंगाई का मुकाबला करना है, लोगों को रिलीफ देना है, तो सर्कुलर डेट को के मसले को एक्चुअली एड्रेस करना होगा। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? व्हाट इज़ योर प्रपोजल ऑन दिस? देखिए जी, सर्कुलर डेट जो है ये तकरीबन अब कोई 2200 अरब रुपए तक पहुंच गया है, और इसमें बुनियादी वजह जो है, इसमें गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों में कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है बिजली की, और गवर्नमेंट सस्ती कीमत पे बेचती है। अच्छा, वो कॉस्ट ज़्यादा क्यों पड़ती है और सस्ती पे क्यों बेचते हैं? इसमें तकरीबन 200 अरब रुपए की बिजली की चोरी है, 200 अरब रुपए के बिजली के लाइन लॉसेस हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा ठीक नहीं है, हमारी जो डिस्कोज हैं उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वहाँ पे पिलफरेज है, फिर नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स भी है। तो ये सारे मसाइल जो हैं, इसकी वजह से फिर ये जो गर्दिशी कर्जे हैं ये सारे पाइलअप हुए चले जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए, फिर अगेन वही बात है कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक अच्छी मैनेजमेंट डिमांड करती हैं। तो अच्छी अगर आप मैनेजमेंट करेंगे, इसमें पिलफरेज नहीं होगी, इसमें नाअहली नहीं होगी, चोरी चकारी नहीं होगी, तो ये चीज़ें भी कंट्रोल की जा सकती हैं। और इन चीज़ों को अगर हम कर लें तो मैं समझता हूँ कि कोई 3 रुपए पर यूनिट बिजली की कीमत भी कम की जा सकती है। सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसमें पिलफरेज और लाइन लॉसेज जो हैं उनको कंट्रोल किया जाए। लेकिन हमें जो सुनने में आ रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि ये तकरीबन इसमें बिजली की कीमत बढ़ाकर और 1000 अरब रुपया जनरेट किया जाएगा। एक्सपोर्ट्स में या टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में कोई इसमें इनकलाब लाने का ताल्लुक है। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन इन दिस फील्ड एज वेल। इसमें बात यह है कि स्पिल्ड ओवर ऑर्डर हमारे पास आते हैं। हमारे बांग्लादेश में चूँकि इसमें कोविड से ज़्यादा इफेक्टेड था, फिर इसी तरीके से इंडिया बहुत इफेक्टेड था, चाइना इफेक्टेड था, तो वो कुछ ऑर्डर हमारे पास यकीनन आए और वो फिर हमने उसमें जो सप्लाई की तो उसमें थोड़ा बहुत इजाफा ज़रूर हमारी एक्सपोर्ट्स में हुआ है। हाल दो कि दैट हैज़ बीन ब्रॉट डाउन फ्रॉम 13.25% टू 7%, बट इट फर्दर नीड्स टू बी डिक्रीज टू 5%। अभी गैस के मामले में भी एक बहुत बड़ी एक मिसमैनेजमेंट या मिस गवर्नेंस भी सामने आई है कि इंडस्ट्रीज़ को यकायक कहा गया कि जी आपकी हम गैस डिस्कनेक्ट करने जा रहे हैं और आपको बिजली पे स्विच होना होगा। 54 रुपये से 120 रुपये तक चीनी की प्राइसेस गई हैं। इसमें दबा के सट्टा होता है, दबा के गेम होते हैं। देखें, पाकिस्तान में जो 14% रकबा हमारा कॉटन का जो फील्ड था वो कम हुआ और वो गन्ने की तरफ चला गया। हमारे यहाँ पेस्टिसाइड के इश्यूज़ हैं, तो हमारे यहाँ पानी के इश्यूज़ हैं, हमारे यहाँ खाद के इश्यूज़ हैं। तो ये चीज़ें भी जो आती हैं ये मेरा ख्याल है गवर्नेंस में आती हैं, मैनेजमेंट में आती हैं। अगर ये चीज़ें प्रॉपरली मैनेज कर ली जाती और कॉटन ग्रोअर को अगर बर वक्त ये सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड कर दी जाती और एक प्रॉपर पॉलिसी होती, तो मैं समझता हूँ कि ये एक कॉटन में हमें ग्रोइंग में इतना बड़ा सेटबैक नहीं होता। उसको तरजीह नहीं दी क्योंकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ ये तकरीबन अभी हर चीज़ की शॉर्टेज हो रही है और अभी हम ज़राई मुल्क की बजाय अभी हमारा जो सारा फोकस है वो सारा इम्पोर्ट है, जबकि हम कुछ अर्सा पहले तक इस सारी चीज़ों में खुद कफील थे। फूड आइटम्स में जो है मेनली वो होर्डिंग की वजह से है, इसलिए कि जो मार्केट सोर्सेज हैं उन्हें जब इस चीज़ का इल्म होता है कि जी ये इस चीज़ की इतनी मिकदार मुल्क में मौजूद है और इतनी इसमें शॉर्टेज आने वाली है, तो उसके नतीजे में फिर कुछ लोग जो हैं उसको होर्डिंग कर लेते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में कोई इनकलाब तो बर्पा नहीं हुआ, लेकिन ये कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन थोड़ी सी बढ़ी हैं। दिसंबर में तकरीबन कोई 14% बढ़ी हैं पिछले। जाहिर साहब, ये 2.5 साल में हमने एक नया फिनोमेना देखा है।
वन क्राइसिस आफ्टर अनदर, फूड की इनसिक्योरिटी, एग्रीकल्चरल मुल्क होने के बावजूद कौन सी चीज़ है, दालें कनाडा से खाते हैं, कुछ दालें हम ऑस्ट्रेलिया की भी खाते हैं, चीनी बग़ैर इंपोर्ट किए हमारा गुजारा नहीं होता, गंदम, आटा, चावल, एग्रीकल्चरल मुल्क होते हुए क्या वजह है कि पीटीआई की गवर्नमेंट मास्टर ऑफ क्राइसिस क्रिएटर्स दिखती है, हालांकि पीटीआई की गवर्नमेंट में जिस तरह के इंटेलेक्ट्स हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट को बड़ी ग्रिप होनी चाहिए थी इकॉनमी पे। हमें नज़र आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी ख़ात्मे की तरफ जा रही है, अब ट्रेडिंग इकॉनमी के मॉडल पे जा रहे हैं, सिवाय सट्टा ट्रेडिंग और इंपोर्ट लेड इकॉनमी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अलावा मईशत में कुछ नहीं दिखता। आपको क्या वजह नज़र आती है, एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है कि 2.5 साल गवर्नमेंट अगर सस्टेन करेगी तो वो कैसे सस्टेन करेगी? देखें जी, बात यह है कि पीटीआई की गवर्नमेंट को अब तकरीबन 2.5-3 साल हो गए और इसमें गंदम, चीनी और आपने ये देखा दालों का बहरान, और ये कोई ना कोई बहरान जो है फूड आइटम्स के हवाले से चलता रहता है। और फिर इसी दौरान में आपने देखा कि इनकी कीमतें भी आलमोस्ट डबल हो गई हैं। तो इसमें एक तो पॉलिसी का फैक्टर है कि इसमें जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, इन्होंने प्रॉपर इसमें एग्रीकल्चर को सही जो फोकस होना चाहिए था उस पर वो फोकस नहीं किया, उसको तरजीह नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ ये तकरीबन अभी हर चीज़ की शॉर्टेज हो रही है और अभी हम ज़राई मुल्क की बजाय अभी हमारा जो सारा फोकस है वो सारा इंपोर्ट है, जबकि हम कुछ अर्सा पहले तक इस सारी चीज़ों में खुद कफ़ील थे फूड आइटम्स में। अब बात यह है कि इसमें ज़ाहिर है जैसे आपने कहा कि इसमें हमें तो इसमें इंपोर्ट के ऊपर भी खासा ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है, फिर महंगाई और बेरोज़गारी जो है मेनली वो होर्डिंग की वजह से है, इसलिए कि जो मार्केट सोर्सेज हैं उन्हें जब इस चीज़ का इल्म होता है कि जी ये इस चीज़ की इतनी मिकदार मुल्क में मौजूद है और इतनी इसमें शॉर्टेज आने वाली है, तो उसके नतीजे में फिर कुछ लोग जो हैं उसको होर्डिंग कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रही कि ये चीज़ें हमारे पास जो हैं कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी हमारे पास प्रोडक्शन है, कितने स्टॉक में है, तो हमें कितनी इंपोर्ट करनी होगी। तो बहरहाल ये एक तो अपनी पैदावार हमारी इन सारी चीज़ों की गिर रही है, दूसरी तरफ इंपोर्ट के भी हम सही और बर वक्त तखमीने नहीं लगा पा रहे हैं, जिसकी वजह से फिर ये सारी जो मैं समझता हूँ कि मिस गवर्नेंस है कि इन चीज़ों को गवर्नमेंट प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रही। तो इसमें ज़ाहिर है कि लोगों को इसमें बेरोज़गारी भी हो रही है, लोगों को महंगाई का सामना भी करना पड़ रहा है और गवर्नमेंट के लिए भी ये कोई अच्छा नाम इसमें अर्न नहीं हो रहा। ज़ाहिर साहब, टेक्सटाइल सेक्टर इज़ नॉट एन अननोन एरिया टू यू। टेक्सटाइल सेक्टर में चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं? वी नो कि भाई कॉटन जितनी जगह पे क्रॉप होती थी वो अब एरिया कम से कम होता चला जा रहा है। नाउ फोकस इज़ ऑन शुगर केन। सो बिकॉज दिस इज़ योर पर्टिकुलर एरिया, वी वुड वांट यू कि इस सेक्टर को कैसे रिजुविनेट किया जा सकता है, प्लीज़। देखें जी, टेक्सटाइल सेक्टर में कोई इनकलाब तो बर्पा नहीं हुआ, लेकिन ये कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन थोड़ी सी बढ़ी हैं। दिसंबर में तकरीबन कोई 14% बढ़ी हैं पिछले साल के मुकाबले में। और अगर हम सिर्फ टेक्सटाइल को देखते हैं तो इस साल हमारी जो फरवरी में टेक्सटाइल है वो 3.4% पिछले साल फरवरी के मुकाबले में कम हुई है। और ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जो है हमारी कोई 4.4% पिछले साल फरवरी के मुकाबले में कम हुई हैं। तो जहाँ तक इसमें एक्सपोर्ट्स में या टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में कोई इसमें इनकलाब लाने का ताल्लुक है, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन इन दिस फील्ड एज वेल। इसमें बात यह है कि स्पिल्ड ओवर ऑर्डर हमारे पास आते हैं। हमारे बांग्लादेश में चूँकि इसमें कोविड से ज़्यादा इफेक्टेड था, फिर इसी तरीके से इंडिया बहुत इफेक्टेड था, चाइना इफेक्टेड था, तो वो कुछ ऑर्डर हमारे पास यकीनन आए और वो फिर हमने उसमें जो सप्लाई की तो उसमें थोड़ा बहुत इजाफा ज़रूर हमारी एक्सपोर्ट्स में हुआ है या हमने सस्टेन कर लिया। एज़ फार एज़ गवर्नमेंट इज़ कंसर्न, गवर्नमेंट ने इसमें कुछ एक दो इकदाम ज़रूर अच्छे किए हैं, जैसे कि इसमें स्टेट बैंक ने इसमें जो टर्फ नामी स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई, उसकी वजह से लोगों को सस्ते रेट के ऊपर कर्ज़े मिले। इसी तरीके से कुछ लोन की पेमेंट्स जो हैं इंस्टॉलमेंट्स और मार्कअप वो स्टेट बैंक ने डेफर किए। फिर गवर्नमेंट ने एक हमारा दरीना मुतालबा था कि एक्सपोर्टर्स के लिए बिजली और गैस की कीमतें जो हैं उनको एक सतह पे फ्रीज़ किया जाए ताकि हम कॉम्पिटिटिव हो सकें हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं। तो वो भी गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत उसमें भी जो कीमतें हैं उनको भी ठीक रैशनलाइज़ किया। लेकिन इवन दैन अभी भी हमारा जो मार्कअप रेट है
although that has been brought down from 13.25% to 7%, but it further needs to be decreased to 5%. तो इसमें ज़रूरत है मज़ीद इसमें कम करने की। इसी तरीके से हमें बिजली और गैस को ठीक करने की ज़रूरत है, कीमतें भी ठीक करने की ज़रूरत है, फिर उनकी सप्लाई भी ठीक करने की ज़रूरत है। अभी गैस के मामले में भी एक बहुत बड़ी एक मिसमैनेजमेंट या मिस गवर्नेंस भी सामने आई है कि इंडस्ट्रीज़ को यकायक कहा गया कि जी आपकी हम गैस डिस्कनेक्ट करने जा रहे हैं और आपको बिजली पे स्विच होना होगा। तो इस तरह के इक़दाम आप करें, ज़रूर करें, लेकिन ये कि उसमें इस तरीके से एब्रप्टली लोगों को परेशान करना और उसकी वजह से एक्सपोर्ट पे यकीनन जब पीस ऑफ माइंड नहीं होगा तो उसमें एक्सपोर्ट पे ज़रूर असर पड़ता है। तो इस तरह के इक़दामात जो किए जा रहे हैं वो आई डोंट थिंक कोई एक्सपोर्ट के लिए कोई फेवरेबल होंगे। देखिए ज़ाहिर साहब ने हमें बताया कि बांग्लादेश और बहुत सारे वो ममालिक जो हमसे कम्पीट करते हैं, बिकॉज कोविड के क्राइसिस की वजह से उनके पास ऑर्डर्स गए और उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा ऑर्डर चले गए। कुछ मुल्क बिल्कुल ही बंद हो गए थे तो उनके ऑर्डर हमारे पास आए। सो बिकॉज ऑफ स्पिल ओवर इट वाज एन अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से हमारे टेक्सटाइल सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी। हमें ये देखना है कि 1992 के कप की तरह कि टम्बकटू हार जाए और फलां मुल्क जीत जाए और फिर हमारा नंबर लग जाए। इस दफ़ा भी जो इकॉनमी ने अच्छा परफॉर्म किया, इट इज़ बिकॉज ऑफ दी स्पिल ओवर इम्पैक्ट, स्पिल ओवर ऑर्डर्स हमारे मुल्क में आए। क्या हम दुनिया से यही एक्सपेक्ट करते रहेंगे और दुआ करते रहेंगे कि दुनिया में क्राइसिस रहे, बुरी सिचुएशन रहे तो हमें चांसेस मिले? सो दिस इज़ वन पॉइंट। द अदर पॉइंट दैट ही mentioned was about the गैस की एब्रप्ट बंदिश। गवर्नमेंट ऑल्दो कह के रखती है कि अक्टूबर से दिसंबर तक गैस अनअवेलेबल होगी, बट ट्रांसमिशन लाइन पे भी गवर्नमेंट को इनफैक्ट काम करना चाहिए। सिर्फ ऑर्डर पास करने से मामला ठीक नहीं होते। ज़ाहिर साहब आगे गोइंग फॉरवर्ड मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि कॉटन का 14% रकबा जिस ज़मीन पे काश्त होता था, अब वो शुगर कैन वाले ले गए हैं, जहाँ पे हमें पता है कि 54 रुपये से 120 रुपये तक चीनी की प्राइसेस गई हैं। इसमें दबा के सट्टा होता है, दबा के गेम होते हैं कि चीनी एक रूट से जाती है और वो इंडिया दुबई का चक्कर काट के दोबारा 54 रुपये से 124 रुपये की कौम को मैसर होती है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखें, पाकिस्तान में जो 14% रकबा हमारा कॉटन का जो फील्ड था वो कम हुआ और वो गन्ने की तरफ चला गया। अब हमारे यहाँ जो 16.5 मिलियन बेल्स का टारगेट था कॉटन ग्रोइंग का, वो अचीव नहीं हुआ और उसके बजाय हमारा जो इस साल अचीव हुआ है वो कोई 5.5 मिलियन बेल्स अचीव हुई हैं। तो ऑलमोस्ट 1/3 हमारा टारगेट अचीव हुआ है कॉटन का। ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक ख़राब सूरत हाल है और उसकी वजह से हमें तकरीबन कोई $6 अरब की कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और एक तरफ हमें ज़र मुबादला की वैसे किल्लत है, ऊपर से हम कॉटन इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, अब इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह एक तो खैर रकबा जो है वो हमने गन्ने में चला गया क्योंकि गन्ने में इंसेंटिव ज़्यादा थे, चीनी में इंसेंटिव थे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हमारे यहाँ पेस्टिसाइड के इश्यूज़ हैं, हमारे यहाँ पानी के इश्यूज़ हैं, हमारे यहाँ खाद के इश्यूज़ हैं। तो ये चीज़ें भी जो आती हैं ये मेरा ख्याल है गवर्नेंस में आती हैं, मैनेजमेंट में आती हैं। अगर ये चीज़ें प्रॉपरली मैनेज कर ली जाती और कॉटन ग्रोअर को अगर बर वक्त ये सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड कर दी जाती और एक प्रॉपर पॉलिसी होती, तो मैं समझता हूँ कि ये एक कॉटन में हमें ग्रोइंग में इतना बड़ा सेटबैक नहीं होता, जो कि अब हमारी जो इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल रिलेटेड इंडस्ट्री है, उसको ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है क्योंकि कॉटन उनका रॉ मटेरियल है, उसकी वजह से धागे की शॉर्टेज हो रही है, उसकी वजह से फिर आगे जो उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अगर हम बर वक्त इन चीज़ों को मैनेज करें तो प्राइम मिनिस्टर कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, मानना पड़ता है कि जिस तरीके से वो एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ये चीज़ें ज़ाहिर है कि जो नीचे जिन लोगों ने चीज़ों को मैनेज करना होता है तो उसमें वो लोग बर वक्त उन चीज़ों को अगर मैनेज करें तो ठीक होगा। फिर इसमें एक और बात भी है, इसमें कॉटन ग्रोइंग के अलावा जो हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी है वो 3 साल से उसमें अबेंडेंट पड़ी हुई है, उसके लिए इंतज़ार हो रहा है, मगर अभी तक वो पॉलिसी भी अनलीश नहीं हो सकी। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो बर वक्त अगर इक़दाम किए जाएँ और बेटर मैनेजमेंट की जाए तो ये चीज़ें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हर वक्त इन चीज़ों को हल किया जा सकता है। ज़ाहिर साहब मुझे यहाँ एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है, नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक को मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन।
ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں زاہد صاحب نے کافی چیزوں کی نشاندہی کی، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز انہوں نے بتائی دیٹ واز ان دی رپلائی ٹو آور لاسٹ کویسچن آف دا پریویس سیگمنٹ، کہ جس میں بات چیت ہو رہی تھی اس گورنمنٹ کی پرفارمنس کی، اور جس میں انہوں نے کائنڈ آف شکوہ کیا کہ عمران خان صاحب محنت تو بہت کرتے ہیں مگر جو ان کی ٹیم ہے ایکچولی اس کو پرفارم کرنا ہے۔ یہ وہی والا کیس ہے کہ ایک آدمی ٹاپ پر اچھا سے اچھا بیٹھا ہوا ہو، لیکن اگر اس کے پاس ٹیم اچھی نہیں ہے، اچھے پرفارمر نہیں ہے، ایکچولی عمران خان's job is to have the right person on the right place. So coming to this topic کہ ٹیکسٹائل سیکٹر، کاٹن کی پرفارمنس کی اگر بات کی جائے تو گورنمنٹ کے پاس ایک بیسٹ آف دا بیسٹ پرسن فخر امام صاحب کی صورت میں موجود ہے۔ اگر اس پرٹیکولر سیکٹر کی پرفارمنس دیکھیں، کاٹن سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے، ٹیکسٹائل پالیسی کے لیے آپ نے خود بتایا کہ 3 سال سے خیر سے انتظار ہی ہو رہا ہے، اور وہ پالیسی آ رہی ہے اور خیر سے ابھی تک نہیں آئی۔ اس میں ذمہ دار فخر امام ہے تو ان سے بات کرنی چاہیے، ان کو بہت سارے راستے دکھائے جا سکتے ہیں، دروازہ بھی ایک راستہ ہے۔ اگر فخر امام کو ایشوز نہیں ہیں، اور فخر امام کی کمپٹنس پہ تو کوئی سوال کر ہی نہیں سکتا، بٹ گورننس کے ایشوز ہیں، ان کو بیوروکریسی سپورٹ نہیں کر رہی، ان کو سسٹم نہیں سپورٹ کر رہا، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کی ترقی کو یا پی ٹی آئی کو انفیکٹ جو آخری چانس ہے وہ اس کا چانس جو ہے وہ ضائع کرانا چاہتے ہیں۔ سو زاہد صاحب، اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر، یو نو دس سیگمنٹ آف دا اکانومی، سیکٹر آف دا اکانومی ویری ویل، ٹیکسٹائل سیکٹر میں لانگ اینڈ سسٹین ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی حکمت عملی گورنمنٹ کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ٹیکسٹائل سیکٹر میں یہ کب تک اکانومی اس طریقے سے چلے گی کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں جو ایکسپورٹ کے نمبرز ہیں وہ بہتر ہوں گے تو بیکاز کہ بنگلہ دیش میں مسائل ہو گئے تو آپ کو آرڈر مل گئے، کاٹن آپ کا را گڈ ہے، وہ آپ 6-7 ارب ڈالر کا امپورٹ کر، مطلب کائنڈ آف شرم کی بات ہے۔ سو اے پرسن لائک فخر امام بینگ ایٹ دا ہیلم اینڈ ڈسپائٹ دیٹ یہ سچویشن ہو کہ آج ٹیکسٹائل سیکٹر کو چیلنجز کا سامنا ہے، آپ کے خیال میں آپ کا اس پہ کیا ویو ہے؟ دیکھیں، فخر امام صاحب انتہائی قابل اور پڑھے لکھے انسان ہیں، اور وہ اپنی فیلڈ جو ان کے پاس جو وزارت ہے وہ اس میں بڑے ماہر بھی ہیں، کمپیٹنٹ ہیں، ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ ابھی ایک سیمینار بھی ہمارا اور ان کا مشترکہ طور پہ ہوا تھا کاٹن گروئنگ کے اوپر، اور اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں، تو وہ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن سمجھنے کے باوجود پھر اگر ان چیزوں کو حل نہیں کر پا رہے ہیں، اگر وہ کاٹن گروئنگ کے لیے رقبہ نہیں پراپر کر پا رہے ہیں، اس کے لیے وہ اگر بیج نہیں دے پا رہے ہیں، پیسٹیسائڈ نہیں دے پا رہے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے جو اس میں مسائل ہیں، اگر ان کو پراپر وہ حل نہیں کر پا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے قابل آدمی تو شاید ہمیں اس منسٹری کے لیے نہیں ملے گا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ پرائم منسٹر بھی ان چیزوں کو دیکھیں، اور فخر امام صاحب کی جو تجاویز ہیں یا جو سفارشات ہیں اس میں ان کو فری ہینڈ دیا جانا چاہیے، تاکہ وہ اپنی فیلڈ میں یا اپنی وزارت میں یہ سارے کام کر سکیں، اور اس کا اگر کریں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ ریزالو کر سکتے ہیں۔ زاہد صاحب، گردشی قرضے، سرکولر ڈیٹ پاکستان کی معیشت کو ایکچولی ہولڈ کر رہے ہیں، اس کی گروتھ کو روک رہے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں المسائل اگر کوئی چیز ہے تو دیٹ از سرکولر ڈیٹ۔ اب ٹریلینس میں یہ نمبرز جا رہے ہیں۔ اب پاور سیکٹر میں جو گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی سر اٹھا رہا ہے۔ سو اگر گورنمنٹ کو سسٹینڈ بنیادوں پر مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے، لوگوں کو ریلیف دینا ہے، تو سرکولر ڈیٹ کے مسئلے کو ایکچولی ایڈریس کرنا ہوگا۔ What is your take on this? What is your proposal on this? دیکھیں جی، سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ تقریباً اب کوئی 2200 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے، اور اس میں بنیادی وجہ جو ہے، اس میں گورنمنٹ کو بہت ساری چیزوں میں کاسٹ زیادہ پڑتی ہے بجلی کی، اور گورنمنٹ سستی قیمت پہ بیچتی ہے۔ اچھا، وہ کاسٹ زیادہ کیوں پڑتی ہے اور سستی پہ کیوں بیچتے ہیں؟ اس میں تقریباً 200 ارب روپے کی بجلی کی چوری ہے، 200 ارب روپے کے بجلی کے لائن لاسز ہیں، ٹرانسمیشن سسٹم، ڈسٹریبیوشن سسٹم ہمارا ٹھیک نہیں ہے، ہماری جو ڈسکوز ہیں ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ پلفریج ہے، پھر نان پیمنٹ آف بلز بھی ہے۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں اس کی وجہ سے
से फिर ये जो गर्दिशी कर्जे हैं ये सारे पाइलअप हुए चले जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए, फिर अगेन वही बात है कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक अच्छी मैनेजमेंट डिमांड करती हैं। तो अच्छी अगर आप मैनेजमेंट करेंगे, इसमें पिलफरेज नहीं होगी, इसमें नाअहली नहीं होगी, चोरी चकारी नहीं होगी, तो ये चीज़ें भी कंट्रोल की जा सकती हैं। और इन चीज़ों को अगर हम कर लें तो मैं समझता हूँ कि कोई 3 रुपये पर यूनिट बिजली की कीमत भी कम की जा सकती है। सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसमें पिलफरेज और लाइन लॉसेज जो हैं उनको कंट्रोल किया जाए। लेकिन हमें जो सुनने में आ रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि ये तकरीबन इसमें बिजली की कीमत बढ़ाकर और 1000 अरब रुपया जनरेट किया जाएगा और फिर उससे ये गर्दिशी कर्जे पे किए जाएंगे। तो जब आप बिजली की कीमत बढ़ाएंगे तो यकीनन उससे फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, फिर गरीब आदमी के लिए मसाइल होंगे, एक्सपोर्टर के लिए इश्यूज़ होंगे, इंडस्ट्री के लिए इश्यूज़ होंगे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी। तो ये एक ऐसा विशेष सर्किल है कि आप इससे निकल नहीं सकते जब तक आप एक की टोपी दूसरे के सर, दूसरे की तीसरे के सर, आप जो सिलसिला जब तक करते रहेंगे तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो शोबा जितना काम कर रहा है, जिस तरह का काम कर रहा है, उसको वहीं उसको देखा जाए और वहीं उसकी इस्लाहात की जाए, वहीं उसको ठीक किया जाए। और उसकी बिजली की जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको भी दूसरे ममालिक में उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो दूसरे ममालिक में आ रही है वही हमारी भी आनी चाहिए, क्योंकि फ्यूल वो भी इंपोर्ट करते हैं, फ्यूल हम भी इंपोर्ट करते हैं। तो लिहाजा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की है उसको भी दूसरे ममालिक के साथ कॉम्पिटिटिव हमें रखना चाहिए और उसमें अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो उस चीज़ को भी हमें हैंडल करना चाहिए। तो तब ये चीज़ें जो हैं हम एक इंटरनेशनल जो मार्केट है या इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पे हम मार्केट में इमर्ज कर सकेंगे। साहिब साहब ने सही फरमाया कि हमें ज़मीन पर पाँव रखने चाहिए, हमें ख़बर होनी चाहिए कि हम इंडिया से कंपैरिजन के लिए सिर्फ इंडिया के दिफाई साजो सामान, जहाज़ों और लड़ाई के साजो सामान को देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि इंडिया की मईशत अच्छी परफॉर्म क्यों कर रही है। हम ये नहीं देखते कि बांग्लादेश में जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वो किस तरह के हैं। हम ये नहीं देखते कि चाइना सारी दुनिया में इस रीजन में जहाँ जहाँ पानी है, चाइना वहाँ पे पावर जनरेशन के सिस्टम्स लगा रहा है। हम पानी समंदर में फेंकना प्रेफर करते हैं बिकॉज़ हमें इंडस्ट्री को शायद सस्ता नहीं करना, हमें आवाम को शायद सस्ती चीज़ें फराहम करना हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी लिस्ट में नहीं है। सो अंडरस्टूड ऑल दीज फैक्ट्स। ज़ाहिर साहब, आखिर में अगर आप कोई हुकूमत वक्त को, इमरान खान को कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। मैं समझता हूँ कि जी गवर्नमेंट को एक जो सियासी इस वक्त बेयकीनी की कैफियत है उससे निकलना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों मिलके एक जो सियासी अफरा तफरी है उससे निकलें और मुल्क में एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए। और जब तक ये अनसर्टेनिटी होगी और स्टेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि अब इनके 3 साल हो गए, अब 2 साल रह गए, तो उसमें मैं तो ये समझता हूँ कि बल्कि पॉलिटिकल स्टॉर्मिंग में शायद और इजाफा होगा, क्योंकि आगे आने वाले इलेक्शन के लिए लोग अपनी अपनी रीपोजिशनिंग करेंगे, तो उसका भी बहरहाल बुरा असर पड़ेगा इकॉनमी के ऊपर। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारे जो पॉलिटिकल प्लेयर हैं वो इकॉनमी को अपना तख्ता मश्क ना बनाएं और जो भी चीज़ है पॉलिटिकल ग्राउंड में करें और अपना फोकस जो है वो डिलीवरी पे रखें और पब्लिक को ईज़ आउट करें, पब्लिक को फैसिलिटेट करें। ज़ाहिर साहब, आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी होप कि आप आइंदा भी हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकालते रहेंगे। नाज़रीन, ज़ाहिर साहब happens to be one of the great admirers of this present government, but nowadays he is acting like a critic. इनकी जितनी बातें हैं वो एक पॉजिटिव व्यू हैं फॉर द गवर्नमेंट टू कंसिडर। उनका कहना कि गवर्नमेंट ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन को लगाया हुआ तो है, बट क्या रीज़न है कि वो चीज़ें एक्सिक्यूशन में नहीं जा रही, वो चीज़ें एक्सिक्यूट नहीं कर पा रहा। कागज़ पे पॉलिसीज़ का होना अलग चीज़ है और उनकी एक्सिक्यूशन होना अलग चीज़ है। ही काइंड ऑफ सब्सक्राइब्ड कि अपोजिशन का जो व्यू है कि मुल्क को माफियाज़ के हवाले कर दिया गया है। ही वाज लाइक, ही डिड नॉट क्रिटिसाइज्ड दिस एस्पेक्ट, बट ही सेड कि गवर्नमेंट को गवर्नेंस की चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए बिकॉज 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है। 2.25 साल में दूसरी तरह के मसाइल गवर्नमेंट के पास आएंगे। दोबारा से जो परिंदे हैं उन्होंने अपनी डायरेक्शन लेनी है कि आगे किसकी गवर्नमेंट आएगी, नंबरिंग सिस्टम में आगे किसका नंबर है, लोगों की रीअलाइनमेंट होंगी। सो ही वाज लाइक ऑन अ फ्रेंडली नोट ही सेड कि गवर्नमेंट नीड्स टू इनफैक्ट पुल इट्स सॉक्स। ही एक्चुअली मेंशन्ड
کہ کافی ساری جگہوں پر جو صحیح لوگ ہیں ان کی جو کارکردگی ہے وہ اس وجہ سے اپریشیٹ نہیں کی جا سکتی کہ رزلٹس نہیں آ رہے. ہی اگین اینڈ اگین سائٹڈ the case and reference of فخر امام who happens to be best of the best person, but چیزیں ٹیکسٹائل پالیسی نہیں آ رہی. سیمینار میں تقریریں ہو جانا اور ایکسیکیوشن نہ ہونا was yet another issue. گندم سے لے کر چاول چینی تک ایگریکلچرل ملک ہونے کے باوجود ان کا امپورٹ ہونا اور ویلیویبل ذرائع مبادلہ کا اس میں جانا جس کی وجہ سے مہنگائی کا ہونا, دیز ور دا آل تھنگس جن کو انہوں نے ایز اے کرٹک ریس کیا. بٹ ریممبر ہی ہیپنس ٹو بی ون آف دا گریٹ ایڈمائررز آف دا پریزنٹ گورنمنٹ. ناظرین, زاہد صاحب نے اپنے گفتگو کے دوران ایک اور اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی اینڈ دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو دا ایشو آف سرکولر ڈیٹ. سرکولر ڈیٹ کے بارے میں زاہد صاحب نے بتایا کہ 2200 ارب سے تجاوز کر چکا ہے یہ سرکولر ڈیٹ اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے کوئی پرماننٹ سلوشن ابھی تک نہیں لا سکی. سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ دو طرح کا ہے ناظرین, ایک ہے پیٹرول ریلیٹڈ سرکولر ڈیٹ اور دوسرا ہے گیس ریلیٹڈ سرکولر ڈیٹ. گیس کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 500 ارب سے تجاوز کر چکا ہے اور اس میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. تو زاہد صاحب سیٹ کہ اگین یہ گورننس کا ہی ایک ایشو ہے بیکاز بیسٹ آف دا بیسٹ ریسورسز آر ود دا گورنمنٹ اینڈ یٹ وی سی کہ اس والے مسئلے کے اوپر بھی کوئی نہ بات چیت کرنے کو تیار ہے نہ کوئی پرانے ایس ای سی کے جو چیئرمین ہیں محمد سلیم, انہوں نے بھی پاور سیکٹر ریلیٹڈ ایک رپورٹ جاری کی اور کافی اچھا کام کیا, مگر اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باتیں اور محض باتیں ہی. سو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک آف دس سرکولر ڈیٹ, اور جس میں ہمارا خیال ہے کہ اگر دو حصوں میں بات چیت کی جائے تو بڑا اچھا ہے. پہلے ہم گیس سیکٹر کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس پہ بات چیت کر لیں کہ جس کے بارے میں نے بتایا آپ کو کہ 500 ارب سے زیادہ یہ تجاوز کر چکا ہے اور یہ مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے. گورنمنٹ پریسائسلی, میں نے پچھلے پروگرام میں بہت چھوٹی سی گفتگو کی تھی جس میں بتایا تھا کہ گورنمنٹ اس کو ڈویڈنڈ دے کے اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے, رائٹ ایشو کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے. آج تھوڑی سی تفصیل میں اس لیے بات چیت کر لیتے ہیں کہ کچھ صاحبان ہیں جن کا کہنا ہے کہ ان کو یہ چیز تھوڑا سا اور واضح کر کے سمجھائی جانی چاہیے. سو جو گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے اس میں جو انٹیٹیز بنتی ہیں وہ ہیں پی پی ایل, او جی ڈی سی, ایس ایس جی سی اینڈ سوئی نارتھ. اور یہ اس میں تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ اس لیے بھی بن جاتا ہے یہ کہ اس میں جو صارفین ہیں ان سے پیسے کلیکٹ کر کے ریسیو کر کے یہ ان گیس کمپنیز کو آگے پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں. اور صارفین کی جو لسٹ ہے, طویل فہرست ہے, اس میں صوبائی حکومتیں بھی آ جاتی ہیں, لہذا صوبائی حکومتوں کا بھی جو ہے اس میں ایک خاص کردار ہے. سو گورنمنٹ اگر چاہے تو اس چیز کو سسٹمیٹک طریقے سے حل کر سکتی ہے. گورنمنٹ نے سلیم صاحب کی بھی ایک کمیٹی بنائی تھی. گورنمنٹ اس کے اوپر بھی, ویسے تو کمیٹی بننے کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ آپ کام نہیں کرنا چاہتے, مگر اس ریت سے بھی شاید رشتہ ناتا توڑا جا سکتا ہے, اس بات سے بھی بات چھڑائی جا سکتی ہے اور ایک کوئی نئی مثال قائم کی جا سکتی ہے کہ کوئی کمیٹی بنی, اس نے کام بھی کیا اور اس کی جو ریکمنڈیشنس ہیں, سفارشات ہیں, اس پہ عمل ہو گیا. سو پریسائسلی گورنمنٹ جو ہے اس چیز کو اگر ہولسٹیکلی دیکھے تو جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں یعنی آپ کا ای او بی آئی ہو گیا, اسٹیٹ لائف ہو گیا, یہ 85% ہولڈ کرتے ہیں آپ کے پاور سیکٹر کا. پاور انرجی اینڈ پاور سیکٹر جو ہے اس کا 85% گورنمنٹ کے پاس ہے. سو ایٹ اے میکرو لیول اس کو سمجھنے میں کسی کو بھی دشواری نہیں ہونی چاہیے انلیس کسی کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو, یا میاں زاہد والی بات ہی کہ مافیازی جیسے وہ کہتے ہیں, کرٹکس نہیں ہیں بٹ وہ کہتے ہیں کہ حالات بتا رہے ہیں کہ آپ کی پور گورننس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی کوئی نہ کوئی کردار ہو سکتا ہے. سو سمپل دو چار کی بات ہے کہ انرجی اینڈ پاور سیکٹر میں 85% جو ہے وہ گورنمنٹ کے جو اسٹیٹ اونڈ انسٹیٹیوشنس ہیں, سلک ہے, ای او بی آئی ہے, اگر ان کی ہولڈنگ ہے تو اگر گورنمنٹ ڈویڈنڈ دیتی ہے یا رائٹ ایشو کرتی ہے تو دونوں صورتوں میں اگر کوئی بینیفیشری ہے 85% تو وہ گورنمنٹ ہے. اب گورنمنٹ کے سر پہ مصیبت آئی ہوئی ہے سرکولر ڈیٹ کی,
कौम परेशान है महंगाई की वजह से, विच इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द सर्कुलर डेट। तो गवर्नमेंट अगर इस मसले को हल करती है और इन स्टॉक्स के ऊपर डिविडेंड देती है, तो वो एक पॉकेट से जाकर दोबारा दूसरी पॉकेट से वापस गवर्नमेंट के पास आ रहा है। इसमें किसी पसोपेश की गुंजाइश नहीं है, अनलेस अगेन एंड अगेन आई कीप रिपीटिंग माई सेल्फ कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, या फिर अगर आपका एजेंडा कुछ और नहीं है। इसमें किसी को पसोपेश नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ ये नंबर्स भी बड़े वाज़े हैं, ये बात भी बड़ी छोटी सी है। गवर्नमेंट को सिर्फ बहुत मसाइल हैं, तो गवर्नमेंट एक छोटा सा वर्क ग्रुप बना दे। इसके लिए हमारा फोरम जो है वो अपनी खिदमात पेश कर सकता है, हम TOR लिख सकते हैं।